Good morning, class 10th. I hope you have watched the previous video that is of the properties of the metals and non-metals, in which I have discussed in briefly the comparison between metals and non-metals as well as the exception cases. I hope you like the video. Okay. Now we'll begin with the next topic that is the reactions of metals. Okay. Today we'll see the reactions of metal with water and acids and their salt solution. Okay, so today we'll start with what happens when metals react with water. Before this, we need to see the reactivity series. I hope you all are very familiar with the reactivity series. Because this you have already studied in your class 8 also, the same chapter, metals and non-metals. Okay, today first I'll give you the shortcut that how to learn the metal or non-metal. Okay, so the shortcut is, or you can see the method by which you can learn, that is, see the series are like this: sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, then hydrogen. Then after hydrogen it is again copper, mercury, silver, gold and platinum. Okay, these are the respective symbols. So how can you learn? You can learn by केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है. What I said? Please say it again. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है. Okay, that is still hydrogen. Okay, then after hydrogen, the method to learn is again to write hydrogen, then copper, silver. For this you need to learn write like high court है आप का, तो का will not write. Okay, so high court है आप का. Okay, so this is the shortcut. You can make your own. This is what I have learned. Okay, so now again we will switch to the previous topic. Okay, now we'll begin. So केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है till hydrogen it is. Then after hydrogen high court है आपका. That is the last two elements. Okay, now the first two elements are very reactive, especially the first two, that is the sodium and potassium. Please remember, they are very reactive. That means they are very reactive if they will react with the cold water. अगर ये cold water के साथ में react करते हैं तो क्या होता है, easily that sodium और potassium will float on the cold water. ये क्या होता है, easily यहाँ पे उसके ऊपर के surface पे float होने लगता है. ठीक, suppose a beaker we have here, I have seen here, इसके अंदर हमने ठंडा पानी रखा है, तो अगर जैसे ही हम इसको डालेंगे उसके साथ react करेंगे, ठंडा पानी हम डालेंगे cold water, तो वहाँ से क्या होता है, फिर रिस्पेक्टिव कंपाउंड बनता है हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बाहर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स वो बाहर निकलने लगती है. इन द फॉर्म, नॉट बबल्स, इन द फॉर्म ऑफ गैस. ओके, सो द रिएक्शन फॉर द सोडियम एंड पोटेशियम आर K plus H2O gives KOH एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व. सी अपवर्ड एरो बनाया ना, इसका मतलब क्या है कि गैस विल इवॉल्व. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं की गई है. प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू मेक इट बैलेंस. आपको बैलेंस लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज सोडियम. सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, NaOH बनेगा, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड अगेन हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व. क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वॉलेंट रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, एक्सोथर्मिक होती है, कि हम इसे सिर्फ वो कोल्ड वाटर के साथ ही कराते हैं. हॉट वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें. ठीक, अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा बॉयलेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है. दैट मीन्स द H2 राइजेज अपवर्ड. जो इसमें से H2 गैस बाहर निकल रही है अपवर्ड, दैट विल बर्स्ट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. क्योंकि उसको बहुत हीट भी नहीं दिख रही है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है. एंड जो उसके सरफेस पे जो सोडियम और पोटेशियम जो फ्लोट कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो कैच फायर. उनमें भी क्या हो जाती है, फायर, आग लग जाती है. इसलिए कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा कैरोसिन की बॉटल के अंदर स्टोर करना चाहिए. इनको नॉर्मल बॉटल में स्टोर नहीं करते. क्यों? क्योंकि इनको आउटर सरफेस में या कहीं भी एटमॉस्फेयर में अगर इनको वाटर पार्टिकल दिख गए तो ये उसके साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते ही क्या होगा, बर्स्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन से भी जो भी H2 बाहर निकला गैस के फॉर्म में, उसको नेचर में आते ही, एटमॉस्फेयर में आते ही क्या मिला, ऑक्सीजन गैस.
तो वो H2 जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, बस्ट हो गया मॉइस्चर के साथ ही। फायर, इट विल कैच फायर, क्योंकि क्या हुआ, कंबशन हो गया उसका, ठीक, दैट्स वाई। ओके, वन मोर थिंग, जो सोडियम की रिएक्शन होती है पहचानने का एक तरीका है, सोडियम का रिएक्शन फॉर द पोटेशियम, जो फ्लेम निकलती है वो लिलिक फ्लेम निकलती है, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ वॉयलेट फ्लेम निकलती है। सोडियम की जो फ्लेम होती है वो गोल्डन फ्लेम निकलती है। सोडियम की जो फ्लेम होती है वो कैसी निकलती है, गोल्डन फ्लेम निकलती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो रिएक्शन देता है वो उतना ज़्यादा वॉलेंट नहीं होता विथ कोल्ड वाटर, यानी वो रिएक्शन तो देता है कोल्ड वाटर के साथ, वो उतना ज़्यादा वॉलेंट नहीं होता, उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता, बनता वही हाइड्रोक्साइड ही है। सो द रिएक्शन इज कैल्शियम प्लस वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस विल इवॉल्व। ओके, सेम अब देखिए बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, उसमें कैल्शियम क्या होगा, अब जैसे जैसे H2 गैस बाहर निकलता है, पर वो क्या करता है कैल्शियम, क्योंकि उसके साथ क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है, तो नीचे वो सिंक में आ जाता है। देखिए Ca विल सिंक, मतलब नीचे आ जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है, और सोल्यूशन किस टाइप का बन जाता है, मिल्की सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछा आपसे कि कौन सा मेटल का सोल्यूशन वो कोल्ड वाटर के साथ मिल्की सोल्यूशन देता है, सो द आंसर विल बी कैल्शियम। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें जो H2 ऊपर को आती है, अपवर्ड आती है इन द फॉर्म ऑफ बबल, वो किस फॉर्म में आएगी, बबल के फॉर्म में आएगी। क्यों, क्योंकि वो नीचे से उठ के आ रही है, वो H2 गैस नीचे से उठ के आ रही है, तो बबल के फॉर्म में आएगी। इससे पहले जो हमने सोडियम पोटेशियम में देखा था, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो गैस के फॉर्म में आती है, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, तो वो बबल के फॉर्म में होता है एंड इट विल स्टिक Ca विथ इटसेल्फ एंड हैंस Ca फ्लोट। तो क्या होता है फिर, इसीलिए उसको Ca क्या करता है, फ्लोट करता है। ओके, नाउ क्योंकि हमें पता है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जो है उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया, जो कि नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा। सो ये बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा, ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और मेटल्स के रिएक्शन, उसके बाद कौन से आएंगे, मैग्नीशियम को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ये देखिए बीच में आ रहा है ना मैग्नीशियम, इसको हम छोड़ देते हैं। हमने ऊपर की 3 रिएक्शन देख ली, अब हम नीचे के देखेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। ठीक, हम अब देखेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, क्योंकि आयरन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है, लेड से लेकर प्लैटिनियम तक, ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम के साथ भी नहीं करेंगे, ये हॉट वाटर के साथ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें उसके ऊपर की रिएक्शन देखनी है। तो फर्स्ट 3 की हमने देख ली, मैग्नीशियम की हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में बताती हूँ। फिर अब हमें देखनी है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन है, ये जो रिएक्शन करते हैं ये स्टीम के साथ करते हैं। देखिए यहाँ जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के फॉर्म में होता है। ठीक, अब ये रिस्पेक्टिव क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाएगा वो बनाएगा Al2O3, अगेन H2 गैस विल इवॉल्व। Zn जो बनाएगा Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इनकी अपनी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे AlO क्यों नहीं बना, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी +3, ऑक्सीजन की होगी -2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, Al2O3। ये सारा कुछ आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, कि वैलेंसीज कैसे निकाली जाती है, कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। ओके, आयरन की बनता है यहाँ पे Fe3O4। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आयरन के यहाँ पे जो मैंने ये एरो दिखाया है बेटा, ये डबल साइडेड है, डबल साइडेड हाफ एरो, दैट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और, जो जिंक ऑक्साइड होता है यहाँ पे, वो इट इज़ येलो व्हेन हॉट वाटर एंड व्हेन वाइट इन कोल्ड। अगर कभी भी जिंक की रिएक्शन में स्टीम के साथ करने पे अगर वो जिंक येलो, ZnO येलो कलर का देख रहा है, यानी वो हॉट के साथ मिलाया गया है, और वो वाइट में कलर का दे रहा है, यानी वो कोल्ड वाटर के साथ उसने, यानी कोल्ड स्टीम के साथ थोड़ा हल्के उसके साथ रिएक्ट किया होगा। दैट इज़ द मेथड टू डिटेक्ट, नथिंग एल्स। ओके, अच्छा, मैग्नीशियम बचा था हमारा। मैग्नीशियम मैंने कहा था, मैग्नीशियम की जो रिएक्शन होती है वो हॉट वाटर के साथ होती है। मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा याद रखना, इट विल फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड। ठीक, जो कि क्या होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटेड डाउन होता है, देखो डाउनवर्ड एरो बनाया है ना, और प्लस H2 गैस विल इवॉल्व। ठीक है, तो अगेन प्लीज़ रिवाइज इट, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, नाउ मूविंग
नेक्स्ट टॉपिक दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो एसिड का मतलब यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है, कंसनट्रेटेड नहीं है, प्लीज रिमेंबर। तो डाइल्यूट में HCl और H2SO4, नॉट HNO3। देखो मैंने क्रॉस करा, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे एसिड का मतलब सिर्फ HCl और H2SO4 होगा, HNO3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी थोड़े आगे जाके हम बताएंगे। तो जब भी मेटल एसिड के साथ ये करता है चिल्ड्रन, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, और ये जो रिएक्शन होगी बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक टाइप की होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल Zn H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करेगा तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा ZnSO4, H2 गैस विल इवॉल्व। मैग्नीशियम करेगा तो MgSO4 H2, एल्यूमिनियम करेगा तो Al2SO4 होल थ्राइस और H2 निकल जाएगा। ये वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड बने, ठीक। सेम अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ बना के देखो तो ये क्लोराइड बनेंगे, है ना। ZnHCl के साथ रिएक्ट करने पर ZnCl2 और H2 गैस निकल जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ MgCl2, एल्यूमिनियम की रिएक्शन AlCl3, दैट मीन वैलेंसीज के अकॉर्डिंग बने, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सेम आगे बढ़ने से पहले अगेन हमें रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी, ये बार बार काम आएगी। इस टॉपिक को इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लें, ओके। अब एक चीज़ और, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान देना कि जितने भी मेटल्स अब हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर हैं, इसका मतलब ये इन द सीरीज लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक। जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर, जब कभी भी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वेदर इट इज़ H2SO4 और HCl, नॉट HNO3, ओके, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जैसे अगर हमने देखा, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसी को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के रिएक्शन अगर हम कराएं डाइल्यूट HCl के साथ तो देख क्या बनेगा, MgCl2 H2 गैस। आयरन की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, FeCl2 H2 गैस। अगर कॉपर की रिएक्शन कराएं तो सोचो क्या होगा, कॉपर की रिएक्शन। अब देखो आप कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, दिखा ये रहा, है ना। अब यानी जो भी हाइड्रोजन की सीरीज के नीचे होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, दैट मीन दैट रिएक्शन कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक। ये देखिए क्रॉस लगाया हुआ है। बाई चांस एक चीज़ और है, सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HCl के साथ कराए तो क्या होगा, तब भी रिएक्शन नहीं होती है बट परफॉर्म नहीं की जाती, करी नहीं जाती। क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि दैट कैन नॉट बी परफॉर्म इन लैब। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, आपको पता है सोडियम और पोटेशियम हम बार बार बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये इतना रिएक्टिव होता है दैट कैन नॉट बी परफॉर्म इन द लैब। ऐसा नहीं कि होगा बट बहुत ज़्यादा विग्रस कंडीशन होती है, अवॉइड किया जाता है, ठीक है। चलिए ऐसी ही एक चीज़ और देखिए, प्लैटिनम की रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराए तो भी रिएक्शन नहीं होगी। देखिए क्रॉस लगाया, क्यों मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आता है प्लैटिनियम, कॉपर भी नहीं दिखेगा, है ना, क्रॉस लगाया ना, सेम थिंग, ओके। अच्छा अगर बात करते हैं कि क्या होगा जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, अगर हम बार बार कह रहे हैं कि HCl से भी H2 निकलते हुए दिखाई दे रहा है, H2SO4 से भी H2 निकलते हुए दिखाई दे रहा है, बट HNO3 से H2 क्यों नहीं निकल रहा है, इसका आंसर अब देखते हैं। इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज वाई डाइल्यूट HNO3 डज नॉट इवॉल्व H2 गैस विद मेटल अबव हाइड्रोजन इन सीरीज। यानी HNO3 किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन क्यों नहीं लिबरेट करता, जो उसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर अगर वो मेटल हैं और फिर भी अगर हम उनकी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते तो फिर भी वो H2 रिलीज क्यों नहीं करता, इसका आंसर अब सुनिए। क्योंकि जो HNO3 है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। वो H2 जो बनता तो है बट वो उसके आते ही उसके बाद में और ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। वो जैसे ही हम सपोज हम जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो जो भी H2 निकलेगा स्टार्टिंग में उसको HNO3 क्या करता है, दोबारा से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है। तो वो ऑक्सीजन गैस फिर क्या करता है, वो वाटर बना देता है। H2 बनता ही नहीं है, वो H2 बनने के बाद आगे जाके क्या बन जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में, वाटर में। सो NaH2 इवॉल्व इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक। ये रहा
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी ऑब्टेन H2 गैस विद डाइल्यूट HNO3 एवर? क्या हम कभी भी H2 गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं HNO3 के साथ? अगर आप लिखेंगे कि नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हम कर तो सकते हैं. सो द आंसर इज ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. ओनली मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg और मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 और सिंबल Mn होता है, दे ओनली कैन रिएक्ट विथ वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, जिसमें कि खाली HNO3 का 1% हो, बाकी का सारा पानी हो. इतना पतला सोल्यूशन, इतना डाइल्यूट कर दिया. दे ओनली गिव H2 गैस. ठीक, ओके. चलिए, नाउ नेक्स्ट दैट इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेल्ट सॉल्ट. किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इसको करने से पहले दोबारा से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लो. अभी देखो मैंने हाइड्रोजन को एक बॉक्स पे बंद कर दिया, क्योंकि बताने के लिए कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं. उसमें से भी जो ऊपर के दो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं और प्लैटिनियम लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक, बार बार इसको रिवाइज करिए, लर्न हो जाएगा. सपोज अब NCERT में इस टॉपिक के अंदर 2 ही रिएक्शन दिए हैं, तो हम उन्हीं 2 को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके अलावा तीसरे में नहीं जाएंगे. NCERT में जो रिएक्शन दी है वो ये है कि अगर हम कॉपर वायर को FeSO4 सोल्यूशन में डालेंगे जो कि ग्रीन कलर का होगा तो क्या होगा, और अगर हम आयरन नेल को हम CuSO4 के सोल्यूशन में डालेंगे जो कि ब्लू कलर में होता है तो क्या होगा. तो हमने रिएक्शन में देखा कि जो आयरन नेल है, यानी जो आयरन की जो कील होती है ना, कील जिसको दीवार में से डालते हैं, सेम आयरन नेल जो Fe का जो होगा, तो जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तब हमने देखा था कि जो ब्लू कलर है CuSO4 का, ये जो ब्लू कलर है वो क्या होता है, फेड होने लगता है, धीरे धीरे उसका कलर गायब होने लगता है, और जो आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता है, ब्राउन कलर इकट्ठा होने लगता है. पर हमने जब कॉपर वायर को FeSO4 में डाला ग्रीन कलर में, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई. अब इसको समझने के लिए अब देखिए. सो द रूल ये कहता है कि मेटल प्लेस्ड अबव इन सीरीज डिस्प्लेसेस दो सॉल्यूशन फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर जिस किसी भी मेटल को हमने डिस्प्लेस कराना है, अगर वो सॉल्ट सॉल्यूशन से ऊपर है तब तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा. अगर वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से नीचे है वो मेटल, तो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर रिएक्शन है Fe + CuSO4, ये वाली हम देख रहे हैं. ठीक, ये तो स्टेटमेंट के फॉर्म में था, अब रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं. अगर Fe + CuSO4 की बात करते हो तो Fe देखो कहाँ है, Fe ये रहा, और CuSO4 का Cu कहाँ है, नीचे है. तो यानी Fe CuSO4 को रिप्लेस कर सकता है, यानी ये CuSO4 में से Fe क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा. अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज़. ये तो हमने पहले भी देखा है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि कोई किस हिसाब से डिस्प्लेस करता है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग. ठीक, अगर हम Cu + FeSO4 लेंगे तो देखो Cu नीचे है, FeSO4 का Fe ऊपर है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी नो रिएक्शन. सेम अगर हम Fe + ZnSO4 लेंगे तो ZnSO4 का देखो Zn कहाँ है, Zn ऊपर है और Fe नीचे है, तो नो रिएक्शन. अगर Zn + FeSO4 लेंगे तो इट विल रिएक्ट. सेम ऐसे ZnCl2 + Ca लेंगे तो CaCl2 Zn बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है, Zn के ऊपर है. देखो कैल्शियम है ना ऊपर, ये Zn के. ठीक, तो किसी भी मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन होती है, इट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड कि क्या वो मेटल अपने मेटल सॉल्यूशन के ऊपर है या नहीं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जैसा वीडियो में ये नोट्स बनाए मैंने, आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए. इससे बाहर से आपको कर देगी, इसके अलावा कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. साथ साथ में जो टॉपिक बेटा हम कवर करते जा रहे हैं, प्लीज़ इनके NCERT के टेक्स्ट और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते रहिए. अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको एक एक का सोल्यूशन भेजते रहूँगी. दैट इज़ योर ड्यूटी. Okay, in the next lecture we will see the next topic, that is the second half of the chapter, that will be metallurgy. For today that's all. Thank you.